nomenclature of aldehyde and ketone, right? Common name system. In case of aldehyde, most frequently used common name system is we write the root word based on the number of carbon, and then we put the suffix aldehyde. And in common name, you know that one carbon is called form, two carbon acet, three carbon propione, फोर कार्बन ब्यूटाइर, फाइव कार्बन कॉल्ड वेलर. जो रूट वर्ड है, जो नंबर ऑफ कार्बन है, इन केस ऑफ कॉमन नेम एंड आयुपैक, दोनों का कन्वेंशन अलग है. आयुपैक में हम बोलते हैं मैथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक. That's how we represent the number of carbon in the principal carbon chain. In case of common name system, there are two things. Number one, जो आपका कंपाउंड्स के अंदर टोटल कार्बन है उसको रूट वर्ड से शो करते हैं, नॉट एनी प्रिंसिपल कार्बन चेन, राइट? आयुपैक में आप क्या करते हो? यू काउंट द कार्बन ओनली ऑफ द प्रिंसिपल कार्बन चेन. In common name, you count the total number of carbon. Okay, just taking for an example, CH3, CH, CH3, CHO. If this is the compound, IUPAC will count only these three carbon in principal carbon chain and this one in the branch. तो इसका रूट वर्ड आएगा एल्क के अकॉर्डिंग प्रॉप. ओके, और कॉमन नेम क्या करता है? कॉमन नेम टोटल नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करता है. टोटल नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करेगा तो यहाँ पे चार कार्बन है तो यहाँ पे आएगा ब्यूटाइर. नाउ दैट्स अ डिफरेंट थिंग. पहला डिफरेंस हो गया, आयुपैक काउंट्स ओनली द कार्बन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन and common name counts the total number of carbon in the compound. Now, number one thing. Number two, root words are different. Meth, eth, prop, but we use in case of IUPAC. Form, acet, propione, butyl, and velar we discuss in case of the common name system, right? Now, so root word depending on the total number of carbon in the compound plus aldehyde. And IUPAC name, that's simple. You will write the alk. You will follow the whole format of the IUPAC. प्रिंसिपल कार्बन चेन के कार्बन एल्क, एन और एल्डिहाइड का सफिक्स एल. एल. नाउ there are certain conditions where carbon of the aldehyde cannot be included in principal carbon chain. Although aldehyde is a principal functional group in a compound, now if aldehyde is a principal functional group in compound, its carbon must be included in principal carbon chain. Agreed? Sometimes you cannot include that. जैसे principal carbon chain is cyclic and aldehyde group is present outside the ring. So obviously you cannot count the number of carbon with the principal carbon chain. So in such case what happens is the L suffix is not used and then we use the suffix carbaldehyde. Carbaldehyde कब यूज करेंगे carbaldehyde? When the carbon of aldehyde cannot be included in principal carbon chain although it is a principal functional group. Okay, तो ये दो conditions हो सकती हैं. As far as possible we have to follow the first condition, but if you cannot include then only you go for the second condition. As far as ketone nomenclature is concerned, ketone nomenclature system में हम R1COR2 तो हम कीटोन ग्रुप को अलग कर देते हैं. पहले हम लिख देते हैं नेम ऑफ R1 एंड R2 इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल. सिंपली हाइड्रोकार्बन रेडिकल का नाम लिखो और फिर सफिक्स लगा दो कीटोन.
That's common name system. In case of IUPAC, अगर IUPAC सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो हम लिखेंगे एल्क एज अ नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, प्राइमरी सफिक्स एन, इन और आइन, और सफिक्स लगा देंगे ओन, एल्केनॉन, राइट। ये कब होगा? व्हेन कीटोन इज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इफ carbonyl group, ketone group is a substituent, मतलब along with the ketone group some senior functional group is also present, जैसे कीटोन के साथ में एल्डिहाइड प्रेजेंट है। अब प्रायोरिटी ऑर्डर में एल्डिहाइड इज अ सीनियर, जस्ट वन पोजीशन अबव द कीटोन। तो जब दो फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे तो क्या होगा? द सीनियर वन विल बी टेकन एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड द जूनियर वन विल बी टेकन एज सब्स्टिट्यूएंट, एज अ ब्रांच। उसके लिए प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा, तो तब हम यूज करते हैं प्रीफिक्स ऑक्सो। Okay, these are the just general outline you already know from your 11th standard. इसको क्विकली प्रैक्टिस कर लेते हैं। दिस, पहले हम कॉमन नेम्स लिख लेते हैं सबके। वन कार्बन फॉर्म एल्डिहाइड सफिक्स है एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। टू कार्बन एसिटाल्डिहाइड। थ्री कार्बन प्रोपियोन। फोर कार्बन ब्यूटाइल, यहां पे भी टोटल चार कार्बन है ब्यूटाइल। यहां पांच कार्बन है वैलेर, यहां भी पांच कार्बन है वैलेर। ओके, अब सफिक्स लगा देंगे एल्डिहाइड। टू कार्बन एसेट सफिक्स एल्डिहाइड, थ्री कार्बन प्रोपियोन सफिक्स एल्डिहाइड। चार कार्बन है ब्यूटाइल, यहां पे चार कार्बन है तो ब्यूटाइल और सफिक्स एल्डिहाइड, ब्यूटाइल एल्डिहाइड। यहां पे आपके पास टोटल चार कार्बन है ब्यूटाइल, लेकिन सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब आइसो। सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन, सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन, वन एंड ओनली वन मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट। सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन, वन और ओनली वन मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट, देन इट इज कॉल्ड एज आइसो। तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। और फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड, आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड। दिस इज फाइव कार्बन वेलर एल्डिहाइड। ओके, दिस कंडीशन 1 2 3 4 5 कार्बन वेलर, सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन, यहां पे ये आइसो ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ये आइसो ग्रुप प्रेजेंट है तो हम इसको बोलेंगे आइसोवेलर, आइसोवेलर सफिक्स एल्डिहाइड। यहां अगर हम टोटल कार्बन काउंट करेंगे जैसा हम कॉमन नेम में करते हैं, तो हमारे पास इसके लिए कोई नॉमेनक्लेचर नहीं होगा। इसलिए हमारे पास आईयूपैक में बहुत सॉरी कॉमन नेम में बहुत लिमिटेड कंडीशंस हैं। आइसो कर सकते हैं, नियो कर सकते हैं, ठीक है, या नंबर ऑफ कार्बन टोटल काउंट कर सकते हैं। वी डोंट हैव टू मेनी वेरिएशंस पॉसिबल। अब यहाँ पे हमारी कोई भी अप्लाइड कंडीशन नहीं लगती है। आप कहेंगे इसको आइसो बोल सकते हैं, इसको आइसो नहीं बोल सकते क्योंकि कॉमन नेम में कार्बन की काउंटिंग फंक्शनल ग्रुप के बाद स्टार्ट होती है। तो ये कार्बन सेकंड नहीं है, इन अ वे इट इज अ फर्स्ट कार्बन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन पे मिथाइल होता है तब तो आप आइसो नहीं बोल सकते उसको, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको एज अ ब्रांच ही डील करेंगे, कार्बन इसी के काउंट करेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा, अल्फा पे मिथाइल है तो आई कॉल इट एज अल्फा मिथाइल, अल्फा मिथाइल। एंड 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटाइल suffix aldehyde. Similarly here, this is functional group,
फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के पास वाला कार्बन बीटा, बीटा के पास वाला कार्बन गामा। गामा ब्रोमो, पहले ब्रांचेस का नाम लिखेंगे, गामा ब्रोमो, अल्फा क्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, तो पहले ब्रोमो फिर क्लोरो और फिर बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी। आपके पास टोटल 1 2 3 4 5 कार्बन है, वैलेरल्डिहाइड, we'll call it as वैलेरल्डिहाइड। दिस इज कॉल्ड, बेंजीन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। ओके, practice some more common names. This is a special common name given to it. It is the salicylaldehyde. Salicylaldehyde. ये कंपाउंड को देखो, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और बेंजीन के साथ जब मिथाइल ग्रुप अटैच होता है तो उसके क्या बोलते हैं, टोल्यूइन, और टोल्यूइन में एल्डिहाइड आ गया, ये हो गया टोल्यू एल्डिहाइड, टोल्यू एल्डिहाइड। और टोल्यू एल्डिहाइड में पैरा पोजीशन पे दोनों ग्रुप अटैच है, तो पैरा टोल्यू एल्डिहाइड। ठीक है, नाउ सी दिस वन, ये एल्डिहाइड ग्रुप, बाकी का बचा ग्रुप है ईथर, और बेंजीन रिंग में जब OCH3 आता है तो उसको बोलते हैं एनिसॉल। एनिसॉल के साथ एल्डिहाइड हो गया तो उसका कॉमन नेम हो जाएगा एनिसैल्डिहाइड। एनिसैल्डिहाइड में दोनों ग्रुप मेटा पोजीशन पे है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे है, तो ये हो जाएगा मेटा एनिसैल्डिहाइड। ओके, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज सिनेमैल्डिहाइड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सिनेमैल्डिहाइड, यहां पे डबल बॉन्ड है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज acraldehyde, acraldehyde. This compound is called as protonaldehyde. Protonaldehyde. Okay, so these are some special common names. Now we'll practice the IUPAC name, बहुत simple है। 1 carbon methanol, 2 carbon ethanol, 3 carbon propanol, 4 carbon butanol, 1 2 3 सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल, 3 कार्बन है प्रोपेनल, 1 2 3 4, 3 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एल, और एल्डिहाइड के लिए एल, ब्यूटेनॉल। यहां पे 1 2 3 4, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल। ओके, हियर फंक्शनल ग्रुप कार्बन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फोर्थ पे आया ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 3 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन पेंट, single bond N, pentanol. Okay, now this compound, uh, this is a common name, is also adopted for the aromatic aldehydes. Common name is also adopted in the IUPAC, so we can call it as benzaldehyde, or we can call it as, ये प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हो सकता,
लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो है, तो हम इसको बोलेंगे कार्ब एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको? कार्ब एल्डिहाइड। तो प्रिंसिपल कार्बन चेन हो गया बेंजीन और कार्ब एल्डिहाइड, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। दिस इज एच सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ एच। दो एल्डिहाइड ग्रुप एक दूसरे से अटैच है। दिस इज कॉमन नेम इज ग्लाइऑक्सिल। इसका कॉमन नेम है ग्लाइऑक्सिल। आईयूपैक नेम है 1 कार्बन 2 कार्बन इथेन 1, 2 डाई एल। सी, नॉर्मली जब हम एल्डिहाइड का एल सफिक्स लगाते हैं तो यहां से एन इन आइन का ई रिमूव करते हैं, लेकिन यहां पे नहीं किया, बिकॉज यहां पे हम स्टार्ट कर रहे हैं डी से, वॉवल से स्टार्ट नहीं कर रहे। एल्डिहाइड का ए, और तो जब एल्डिहाइड का ए आता है, सब फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स एक वॉवल से स्टार्ट होता है, तो हमें यहां से ई रिमूव करना पड़ता है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स वोवेल से स्टार्ट नहीं हो रहा क्योंकि पहले डी आ गया, डायल। तो आई विल नॉट रिमूव ई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ग्लाइऑक्सिल। नाउ दिस इज अगेन बेंजीन रिंग के साथ एल्डिहाइड ग्रुप, दैट इज बेंजल्डिहाइड। और जहां जहां बेंजल्डिहाइड वर्ड यूज हो रहा है आईयूपैक में, आप उसकी जगह पे बेंजीन कार्बेल्डिहाइड कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी मैं आईयूपैक में बेंजल्डिहाइड लिखूंगा, नोट इट डाउन, जब भी मैं आईयूपैक में बेंजल्डिहाइड लिखता हूं, आप उसकी जगह बेंजीन कार्बेल्डिहाइड यूज कर सकते हो। ये OH ग्रुप है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रीफिक्स यूज होगा 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, and this is benzene carbaldehyde, or you can call it as benzaldehyde। क्लियर? यहां देखो, मिथाइल है पैरा पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, एंड यू कैन कॉल इट एज बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, और यू कैन सिंपली कॉल इट एज बेंजल्डिहाइड। ओके, हियर मिथॉक्सी ग्रुप, 3 मिथॉक्सी, 3 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। ओके, यहां पे ये प्रिंसिपल कार्बन चेन है, 1 2 3 कार्बन। थर्ड पोजीशन पे बेंजीन रिंग है, 3 फिनाइल, बेंजीन रिंग प्रेजेंट एज अ ब्रांच, 3 फिनाइल, देन 3 कार्बन प्रॉप, सेकंड पे डबल बॉन्ड 2 इन, एंड एल्डिहाइड ग्रुप 1 एल, or you can simply write enal. Here 1 2 3 prop, second पे double bond 2 in, functional group is Al, 1 2 3 4 bute, 2 in, और एल्डिहाइड का सफिक्स L, bute 2 in L। इसका आईयूपैक नेम लिखते हैं। नाउ सी हियर, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप आउटसाइड द रिंग, तो यहां से काउंट स्टार्ट होगा। नॉर्मली काउंटिंग कहां से स्टार्ट होता है? फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप कार्बन, but here the functional group carbon is outside the ring, so I'll count the carbon from where functional group is attached, 1 2 3, 2 3 dimethyl, 2 3 dimethyl। साइक्लिक स्ट्रक्चर है साइक्लो प्रोपेन, और एल्डिहाइड का सफिक्स 2 3 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, सी एक और एग्जांपल देखते हैं, CHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप,
CH2 CH aldehyde functional group, C double bond और CH2 C double bond OH aldehyde functional group. Now you start the chain from any terminal, you start the chain from any corner, you will not be able to include all three functional groups. किसी भी टर्मिनल से स्टार्ट करके तीनों फंक्शनल ग्रुप्स को प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है, जबकि तीनों सेम है। तो तीनों को इक्वालिटी देते हुए हम प्रिंसिपल कार्बन चेन में तीनों को इंक्लूड नहीं करेंगे। नाउ इट इज 1 2 3 प्रोपेन फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप है 1 2 3, लेकिन इन तीनों का जो कार्बन है वो प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूडेड नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे ट्राई कार्ब aldehyde. Clear? Now ketones, this is common name is acetone. IUPAC name for this compound will be 3 carbon prop single bond ane ketone का suffix on propanol. Okay, यहां पे ये कीटोन है, इसके दोनों तरफ रेडिकल्स के नाम लिखो, बाद में कीटोन सफिक्स लगा दो, यू विल गेट द कॉमन नेम। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम होगा इथाइल इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। आईयूपैक 1 2 3 4, आईयूपैक हो जाएगा 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और कीटोन का सफिक्स ओन। नाउ अगेन ये कीटोन, ये प्रोपाइल और ये मिथाइल, तो प्रोपाइल एंड मिथाइल, प्रोपाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। ओके, आईयूपैक नेम 1 2 3 4 5 पेंट, सिंगल बॉन्ड एन, सेकेंड कार्बन पे कीटोन है पेंटेन 2 ओन। यहां पे मैंने पोजीशन मेंशन नहीं किया था और यहां पे भी पोजीशन मेंशन नहीं किया था, क्योंकि यहां कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अगर आप 3 कार्बन का कीटोन बना रहे हो तो वो बीच में ही आएगा। अगर 4 कार्बन का कीटोन बना रहे हो तो एक कार्बन का कीटोन, 4 कार्बन का कीटोन बना रहे हो तो एक कार्बन तो हो गया कार्बोनिल का, बचे 3। इसका मतलब वन साइड देयर विल 1 कार्बन, अदर साइड देयर विल बी 2 कार्बन, सिंपल, देयर इज नो ऑप्शन अवेलेबल फॉर दैट। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, यहां पे प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन में कीटोन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन वेरी कर ही नहीं सकती, तो हम पोजीशन को मेंशन करते ही नहीं है, बिकॉज देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। यहां पे तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे भी हो सकता है और थर्ड पे भी हो सकता है। इट कैन बी पेंटेन 3 ओन ऑल्सो, 1 2 3 4 5। तो नाउ इट विल बी, अगर कॉमन नेम करेंगे तो ये हो जाएगा डाई इथाइल कीटोन, और आईयूपैक नेम हो जाएगा पेंटेन 3 ओन, राइट। इसलिए पेंटेन में हमने पोजीशन मेंशन किया है। वेल, जब बेंजीन रिंग के साथ कीटोन ग्रुप आता है तो हम कॉमन नेम में इसको लिखते हैं फिनोन। बेंजीन रिंग के साथ कीटोन वी कॉल इट एज फिनोन,
and the other group is 2 carbon, तो we call it as common name में एसीटो, तो पूरा नाम हो गया एसीटोफिनॉन, पूरा नाम एक साथ लिखेंगे एसीटोफिनॉन। बेंजीन रिंग है तो विल राइट इज द बेंजोफिनॉन, राइट। आईयूपैक नेम 2 कार्बन है, 1 and 2, देयर आर 2 कार्बन प्रेजेंट। तो वैसे इसका आप आईयूपैक नेम दूसरा भी कॉमन नेम एक और तरह से कर सकते हो बिफोर गोइंग फॉर आईयूपैक। मिथाइल फिनाइल कीटोन, एक ग्रुप है मिथाइल, दूसरा ग्रुप है फिनाइल, और टोटल हो गया कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। जैसे यहां पे हो गया डाइफिनाइल कीटोन, डाइफिनाइल कीटोन, ओके। आईयूपैक नेम 2 कार्बन, और ये प्रिंसिपल चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है तो ब्रांच, तो 1 फिनाइल। फंक्शनल ग्रुप कार्बन को मिनिमम पोजीशन असाइन करेंगे, 1 फिनाइल, 2 कार्बन इथेन, कीटोन का सफिक्स 1 फिनाइल इथेनॉल। यहां पे वी कैन call this part डाइफिनाइल मिथेनॉल, डाइफिनाइल मीथेनॉन, क्योंकि हमने इसको प्रिंसिपल कार्बन चेन लिया और उसके साथ में 2 फिनाइल ग्रुप अटैच है, तो वी कैन कॉल इट एज अ डाइफिनाइल मिथेनॉन। नाउ दिस कंपाउंड is a special common name. This is called biacetyl. Biacetyl. See, remember RCO group. RCO group is called acyl. और R की जगह अगर CH3 आ गया, then it is called acetyl. Acyl और acetyl. इस कंपाउंड का कॉमन नेम है मेसिटाइल ऑक्साइड। दिस कंपाउंड इज मेसिटाइल ऑक्साइड। इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर, मेसिटाइल ऑक्साइड की स्ट्रक्चर याद रखने के लिए देखो, ये कीटोन है, एसीटोन, और ये भी कीटोन है, CH3 CO CH3, 2 कीटोन लिखे, लिखने का तरीका अलग है लेकिन दोनों एसीटोन है। यहां से O हटा दो, यहां से 2 हाइड्रोजन हटा दो, तो ये 2 कीटोन का, 2 एसीटोन का कंबाइंड फॉर्म बन गया। दिस इज कॉल्ड मेसिटाइल ऑक्साइड, ओके। कॉमन नेम मेसिटाइल ऑक्साइड, राइट। एंड इन द नेक्स्ट कॉमन नेम, इसका आईयूपैक नेम करते हैं 1 2 3 4। ब्यूटेन, 4 कार्बन है, ब्यूटेन 2,3 डाई, राइट। हियर 1 2 3 4, लेफ्ट से काउंट करोगे तो डबल बॉन्ड पास में आएगा, राइट से काउंट करोगे तो फंक्शनल ग्रुप विल गेट द लोअर पोजीशन, एंड वी ऑलवेज गिव लोअर पोजीशन टू फंक्शनल ग्रुप। सो आई विल राइट 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, 1 2 3 4 5 पेंट 3 in 2 on कीटोन का पोजीशन। दिस इज, एज आई सेड, CH3CO ग्रुप इज कॉल्ड एसिटाइल, और ये 3 कार्बन वाला कीटोन होता है एसीटोन, तो वील कॉल इट एज एसिटाइल एसीटोन, एसिटाइल एसीटोन। एंड आईयूपैक नेम 1 2 3 4 5। You count from left or you count from right, you will get the same numbering, right? कीटोन आएगा 2 और 4 पोजीशन पे, तो पेंट, सिंगल बॉन्ड एन पेंटेन,
2,4 dione. Pentane 2,4 dione. Some index questions. Alpha methoxy. Alpha methoxy. प्रोपियोन एल्डिहाइड. प्रोपियोन कॉमन नेम में प्रोपियोन का मतलब होता है 3 कार्बन जिसमें से एक कार्बन एल्डिहाइड का है. 1 2 3. नाउ ये प्रोपियोन एल्डिहाइड हो गया. ये फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा और अल्फा के पास वाला कार्बन बीटा. अल्फा मिथॉक्सी मतलब अल्फा पोजीशन पे अटैच है मिथॉक्सी. ठीक है. 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल. आईयूपैक नेम. ब्यूट का मतलब 4 कार्बन 1 2 3 4. 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3. 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल CH3 CH CH2. So that is 1 2 3 4. 3 hydroxy butanol. Now 2 hydroxy cyclopentane कार्बेल्डिहाइड. कार्बेल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट आउटसाइड द रिंग. साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन की चेन है. साइक्लिक स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5. ओके. नाउ 2 हाइड्रोक्सी. अब ये एल्डिहाइड है. ये प्रिंसिपल चेन का पार्ट नहीं है. यहां से काउंट स्टार्ट किया 1 2 3 4 5. सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी. 4 ऑक्सोपेंटेनल. पेंट का मतलब 5 कार्बन. एल्डिहाइड का मतलब वन ऑफ द कार्बन इज एल्डिहाइड. एल्डिहाइड 1 2 3 4 5. 4 ऑक्सो. अगर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं या कीटोन इज प्रेजेंट विद सम अदर सीनियर फंक्शनल ग्रुप तो कीटोन के लिए फिर हम सफिक्स यूज नहीं करते, प्रीफिक्स यूज करते हैं ऑक्सो. तो यहां पे 4 ऑक्सो का मतलब है 1 2 3 4 5. फोर्थ पोजीशन पे कीटोन प्रेजेंट है पर इसके लिए ओन सफिक्स यूज नहीं किया क्योंकि उससे ज्यादा सीनियर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड प्रेजेंट है. तो CH3 CH2 CH2. डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन कॉमन नेम. कीटोन secondary butyl radical. Secondary butyl radical, we have practiced all the possible radicals up to 5 carbon in common name system, right? So I am not going to repeat everything right now. Secondary butyl, but का मतलब 4 कार्बन 1 2 3 4. सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब 2 डिग्री कार्बन से वैलेंसी फ्री है क्योंकि एक रेडिकल है. ठीक है. तो ये हो जाएगा CH CH3 CH2 CH3. Similarly CH CH3 CH2 CH3. करेक्ट. तो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल. 2 डिग्री कार्बन से सीधा रेड पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल. इसमें 4 कार्बन है और सेकेंड 2 डिग्री कार्बन से वैलेंसी फ्री है. दैट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल. सेकेंडरी ब्यूटाइल डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन. 4 फ्लोरो एसिटोफिनॉन. एसिटोफिनॉन. एसिटोफिनॉन वर्ड कब यूज करते हैं? फिनॉन कब वर्ड यूज करते हैं? जब बेंजीन रिंग के साथ कार्बोनिल कीटोन ग्रुप अटैच होता है. C डबल बॉन्ड O. और एसिटो मतलब 2 कार्बन है. तो ये हो गया एसिटोफिनॉन. एसिटोफिनॉन में 4th पोजीशन पे फ्लोरीन है. 4 फ्लोरो एसिटोफिनॉन. That's about the IUPAC and common name system of aldehyde and ketone.